गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएम है रिस्क को पढ़ने जा रहे हैं। रिस्क की जो राइटर हैं वो है जेनेट रेन, जिन्होंने इस पोएम को क्रिएट किया है। और जो रिस्क है उसका एक मतलब है कि हमारी जो लाइफ है जिसमें आने वाली चाहे कोई सी भी बाउंडेशंस हो, चाहे हमारा हंसना हो, खेलना हो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इज सराउंडेड बाय रिस्क। ओके, सो नाउ फर्स्ट we know about its first stanza. To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self. So first of all we know about its mean. What is the mean of risk? Here risk is used as a noun form, which means a situation that can be dangerous for us, and appearing mean looking. Appearing mean looking यानी प्रकट होना. As it is sentimental means desirably emotional. It's clear. As means involve, उसमें शामिल होना, and the feeling as our emotions. और exposing मतलब जाहिर करना, it's mean reveal, and true self in true faces. So first we know that, first of all we write that about this poem. This poem is written by Janet Rand. And the second thing, to laugh is to risk appearing the fool. यदि हम हंसते हैं तो इसमें भी क्या है, हमारे जो मूर्ख होने का जो है, प्रकट होने का, दिखने का एक खतरा है। ऐसे ही टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर हम किसी के सामने रोते हैं तो इसमें हमारे क्या हो, दिखने का खतरा है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाते हैं, तो इससे हमें वो खतरा है। ऐसे ही टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इसी प्रकार से रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. इट्स मीन टू शो समबडी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हिम एंड वांट टू मीट हिम, यानी कि आप किसी से मिलने का दिखावा करते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए तत्पर हैं, तो इसमें भी आपके जो है एक प्रकार की रिस्क इसमें इन्वॉल्वमेंट है. एज इट इज़ टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. यदि आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको दूसरों के सामने जाहिर करते हैं तो इसमें भी क्या है, आपके जो सच्चे दिखने का एक क्या है, रिस्क है. इफ वी सेज इन एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट द मैन doesn't know that his act is full of risk. As it is, if we laugh, so it is also included in this. If we weep, so we looks, people may call him emotional. If we weep, so people will call him emotional. As it is, to reach out from another is to risk involvement. If he helps other people, may thought that we are fool. Okay, and if we express our ideas in front of other persons, so they are think that we are don't reveal our true self, but we are talking about some kind of fake things. As it is, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called native. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. So first of all we know about its meaning. Place means present. As it is, ideas मतलब thoughts, and risk you know very well. Being called native, native यानी होता है स्वदेशी होना, या फिर आप कह सकते हैं native का simple person. As love, risk not being loved in return. To live is to risk dying. It's mean if we shows our ideas and thoughts and our dreams tells about to other person, so they are think about that we are simple in manner. As it is, to love is to risk not being loved in return. If we love any other person, so it's not mean that our love is written in the man basis. अगर हमने किसी से प्यार किया है तो हम, ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो है हमें प्यार रिटर्न में ही मिले. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और इसी प्रकार से हमारे जीने में भी क्या है, एक प्रकार से मरने का खतरा है. नेक्स्ट स्टेंजा, टू हॉप इज टू
risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. So here hope mean to think of getting succeed as it is. The second thing, disappear means hopelessness as it is, because the greatest hazard means होता है danger, and in life is to risk nothing. So now we translate it, to hope is to risk disappear. As you wish that all persons have a wish as a hope, but is to risk disappear, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में एक आशा होती है कि मैं ये बनूंगा या ये करूंगा, लेकिन उसकी उसी जो होप है उसको डिसअपियर यानी कि निराशा में बदलने का क्या है, एक खतरा है. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर एज इट इज. इफ वी डोंट ट्राई, सो वी डोंट रिस्क इन आवर लाइफ. इफ वी ट्राई समथिंग, सो वी आर ऑल्सो फेलियर, कि हम उसमें असफल भी होंगे. So in both things are included in risk. If we don't try, so we don't get risk. If we want to take risk, so we are face of try and failure, both of these. But risk must be taken. लेकिन इनमें हमें क्या है, जो रिस्क है वो ली जानी चाहिए हमारे द्वारा. Because the greatest hazard in life is to risk nothing. क्योंकि हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा जो महानतम जो खतरा है, डेंजर है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. वो क्या है कि अगर हम रिस्क उठाए ही ना तो इसमें ज़्यादा खतरा है बजाय इसके कि हम इन चीज़ों से दूर रहें. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव. In this inspiring stanzas, the poet says about some kind of life's matter. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. So in which avoid means to escape as it is, suffering means troubles, and sorrow means pain, एक्सेट्रा. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति जो कि अपने लाइफ में कभी क्या नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता. हैज़ नथिंग, डज नथिंग, वो ना ही कुछ कर सकता है और ना ही बन सकता है. इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, और वो इससे आगे भी क्या है और कुछ नहीं होगा, उसके लाइफ एक डलनेस में ही स्पेंड हो जाएगी. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव. दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, यदि वो क्या करेगा, अपनी जो सफरिंग, पीड़ा और जो सोरो है, दुख को क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा. बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है, बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव. वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को क्या है, फाइंड नहीं कर सकता. इफ वी से दैट इन सिंपल वर्ड्स, द पोएट सेज दैट द मैन who doesn't take risk can do nothing, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहता वो कर भी कुछ नहीं सकता है. एज इट इज, सच ए मैन कांट get anything in his life, he can't become anything in life. If he wants to do something, to have something to or become something, he will have to face to risk in all these situations. So these both stanzas are inspiration. So last and final stanza, chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks and is truly free. Chained mean bound in chains. Certitude मतलब certainly. As slaves means some kind of we have no freedom in our life. They have forfeited, it means fixed. Okay, forfeited means lost. So chained by their certitude,
दे आर स्लेव्स। अगर हम क्या नहीं करते हैं, इफ़ वी चेन बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। अगर हमारी जो फीलिंग है ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की, उसको एक चेन के रूप में बांध लेते हैं तो दे आर स्लेव्स, तो हम क्या बन जाते हैं, उन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम उनको क्या है, इफ़ वी डोंट टेक रिस्क इन लाइफ सो आवर लाइफ लुक्स लाइक एज स्लेव्स। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो क्या है, अपनी जो फॉरफिटेड जो है लॉस कर देते हैं देयर फ्रीडम, और वो अपनी जो फ्रीडम स्वतंत्रता होती है उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ओनली पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में क्या है, रिस्क लेता है, वही अपने जीवन में पूरी तरीके से क्या है, फ्री है।